Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. We have started our chapter photosynthesis. Now, in this chapter, we will discuss about nature and units of light. Sunlight satisfies two very important needs of biological organisms: energy and information. On the one hand, radiant energy from the sun maintains the planet's surface temperature in a range suitable for life, and through the process of photosynthesis is the ultimate source of energy that sustains most of the life in our biosphere. On the other hand, radiation, primarily in the form of light, also provides critical information about the environment, information that is used by plants to regulate movement, trigger developmental events, and mark the passage of time. The importance of life in the life of green plants is reflected in the study of photobiology, which encompasses not only phenomena such as photosynthesis, which reflects the role of sunlight as an energy source, but also phenomena such as the photomorphogenesis and photoperiodism. Photomorphogenesis, in which the sunlight provides the necessary information for the proper plant development, and in photoperiodism, the measurement of day length respectively. What is light? As Johnson recognized more than 200 years ago, we all know what light is, but it is not easy to tell what it is. The simplest answer is that light is a form of radiant energy, a narrow band of energy within the continuous spectrum, electromagnetic spectrum of radiation emitted by the sun. The term light describes that portion of electromagnetic spectrum that causes the physiological sensation of vision in humans. In other words, light is defined by the range of wavelengths between 400 and approximately 700 nanometers capable of stimulating the receptors located in the retina of the human eye. Strictly speaking, those regions of the spectrum we perceive as red, green, or blue are called light, whereas the ultraviolet and infrared regions of the spectrum, which our eyes cannot detect although they may have significant biological effects, are referred to as ultraviolet or infrared radiations, respectively. While the following discussion will focus on the light, it is understood that the principles involved apply to radiant energy in the broader sense. Radiant energy. Energy from sun is derived from a nuclear reaction involving the conversion of hydrogen atom into helium. This reaction takes place at very high temperature and pressure, and each second the sun sends into the space energy 1 million times that of Earth core. Energy through space travels as electromagnetic radiation. Like other forms of energy, light is a bit of an enigma and is difficult to define. It is more easily described not by what it is, but by how it interacts with matter. Physicists of the late 19th and early 20th centuries resolved that light has attributes of both continuous waves and discrete particles. Both of these attributes are important in understanding the biological role of light. First of all, we will describe light can be characterized as a wave phenomenon. The propagation of light through space is characterized by regular and repetitive changes or waves in its electrical and magnetic properties. The electromagnetic radiations actually consist of two waves, one electrical and one magnetic.
that oscillate at 90 degrees to each other and to the direction of propagation. It is shown in the figure of the following slide. The wave properties of the light may be characterized by either wavelength or frequency. The light wave is a transverse, side-to-side electromagnetic wave in which both the electrical and magnetic fields oscillate perpendicularly to the direction of propagation of the wave and at 90 degrees with respect to each other. Relationship of wavelength, frequency, and speed of any wave. A simple equation relates the wavelength, frequency, and speed of any wave. It can be represented by c is equal to lambda nu. In this case, c is speed of wave, which is in this equation it is representing the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Lambda is representing wavelength distance between successive wave crust, and frequency is the number of wave crusts that pass on an observer in a given time. Normally, the lambda is represented in the units of nanometer, and 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. Light can be characterized as a stream of discrete particles. Now, the second feature of the light, when light is emitted from a source or interact with matter, it behaves as though its energy is divided into discrete units or particles called photons. The energy carried by a photon is called a quantum, or its plural is quanta. To reflect the fact that the energy can be quantized, that is, it can be divided into multiple units, the energy carried by a photon, EQ, is related to wavelength and frequency in accordance with the following relationship. EQ is equal to hc over lambda, or is equal to h nu. Here nu is equal to c over lambda. According to Planck's law, EQ is equal to h nu. EQ is representing energy of the light, and h is the Planck's constant, which is 6.626 into 10 raised to power minus 4. And nu, as I told you in the previous slide, is frequency. According to quantum energy of radiation, it is inversely proportional to its wavelength, or it is directly proportional to its frequency. Means energy is inversely proportional to its wavelength. Greater the wavelength, longer the wavelength, less will be the energy, and if the wavelength is short, energy will be more. And similarly, it is directly proportional to its frequency, means more frequency, more energy, less frequency, less energy. The symbol h nu is commonly used to represent a photon in figure and diagrams. Since both h, the Planck's constant, and c, the velocity of light, are constants, the energy of photon is easily calculated for any wavelength of interest, as we will calculate the energy of red light and blue light in the following slide. Now the energy calculation for red and blue light. The following are the examples which illustrate the calculation of energy content of red light with the representative wavelength of 660 nanometer, or you can say 6.6 into 10 raised to power minus 7 meter. According to the equation, EQ was equal to h nu. तो h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 6.62 into 10 raised to power minus 34 joules सेकंड पर फोटोन, और उसके साथ ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट की 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड ओवर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उन्हीं यूनिट्स में, क्योंकि ये भी सारे मीटर में हैं, सेकंड्स में हैं, तो इसको भी हम मीटर वाली यूनिट को हम इस्तेमाल करेंगे रादर देन नैनोमीटर के।
तो हम यहाँ पे रेड लाइट की एनर्जी जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁷मीटर। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो दिस विल बी इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस पोर्शन, we will get the value 3 into 10⁻⁻19 joules per photon। और इसी तरीके से अगर हम ब्लू लाइट की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें, तो ब्लू लाइट जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज 435 नैनोमीटर होती है, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 4.35 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगेन, EQ is equal to hc over lambda। तो अगेन ये वाली वैल्यू जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट की है और ये वाली वैल्यू जो कि स्पीड ऑफ लाइट की है, ये वही रहेंगे। और डिवाइजर जो है लैम्डा जो है वो चेंज हो जाएगा दिस टाइम। पहले हमने रेड के हिसाब से कैलकुलेट किया था, अब हम ब्लू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ द ब्लू लाइट हियर, 4.35 into 10⁻⁻7 मीटर। अगेन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो वी विल गेट द वैल्यू 4.56 into 10⁻⁻19 joules per photon। तो इस तरीके से हम एनर्जी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगल फोटोन की या सिंगल जो आप कह लें कि वेवलेंथ जो है उसकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन इज़ नॉट अ यूजफुल आइडिया। रादर मोल में अगर आप फोटोन को उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ मोर यूजफुल देन डीलिंग विद द इंडिविजुअल फोटोन। सो अगर इन्हीं वैल्यूज़ को हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे, सो अकॉर्डिंग टू द फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ that states that a photon, 1 mole of a photon of a particular wavelength would be required to excite 1 mole of a pigment molecule। तो उस लिहाज से मोल में एनर्जी को कैलकुलेट करना इज मोर यूजफुल rather than to calculate the energy of one photon as we did in these equations। Here are units of the light in terms of energy and in terms of its wavelength। अगर illumination के हिसाब से देखा जाए तो we have the units like lumen, foot candle, lux, और फिर इसी तरीके से इनकी इंटर कन्वर्जन्स भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको एनर्जी के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहें तो देन वी हैव वॉट, जूल्स पर सेकेंड, इन अर्ज और इन मोल और इन कैलोरीज। तो इन तमाम यूनिट्स में हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। Wavelengths of primary interest to photobiologists fall into three distinct ranges: ultraviolet, visible, and infrared. Ultraviolet, this can be further again divided into UVA, UVB, and UVC, having the ranges from 320 to 400 nanometer in case of A, 280 to 320 nanometer in case of B, and 100 to 280 nanometer in case of UVC. The visible spectrum is ranges from 380 to 700 nanometer. After that, we have a far red region that ranges from 700 to 775 nanometer. And after that, the value greater than 775 nanometer is the area of infrared. Here is the electromagnetic radiation spectrum is shown. You can see started from the lowest known electromagnetic radiation, gamma rays, with the highest energy and lowest lambda, then X-rays, and then ultraviolet rays. Then comes the visible spectrum, which is further extended, and then infrared rays, radar waves, frequency amplitude, frequency modulation waves, and then television waves used for television, and then short waves and amplitude modulation waves. Here, the visible spectrum, you can see it can be divided further into multiple colors, 7 colors, starting from violet color and ends at red color, and then infrared portion is also shown here. You can see it is a continuum spectrum. For our understanding and for our own sake, we have divided it into different portions
like violet and blue and green and then yellow. Otherwise you can see it's a continuum spectrum of color. Here is the electromagnetic spectrum with respect to their utility is shown. जैसा कि आपको पता है कि गैमा रेज जो हैं वो रेडिएक्टिव सोर्सेज में इस्तेमाल होते हैं, एक्सरे मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं, देन अल्ट्रा वायलेट हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स में हम यूज़ करते हैं फॉर किल द जर्म्स. And then the visible spectrum, which is the actual topic of our discussion with respect to photosynthesis. And then the infrared region, which is utilized to make many kinds of thermometer. Infrared thermometer आजकल बड़े मशहूर हुए हैं, जो कि आप कहने का डिजिटल थर्मोमीटर में इंफ्रारेड ही इस्तेमाल होती है. एंड देन द माइक्रोवेव्स, जो कि हमारे माइक्रोवेव्स में इस्तेमाल होती हैं ये वेव्स. एंड देन द रेडियो वेव्स, जो कि डिफरेंट जो रेडियो चैनल्स हैं वो इन्हीं के जरिए जो है वो ऑपरेट होते हैं. विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे फर्दर और क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू द wavelength and different wavelengths and their respective colors are given here. For example, the region which is ranges around 400 is for violet or ultraviolet you can say. Then around 450 above and below is blue region. Then above and below 500 it's cyan region. Then 550 के अराउंड जो है हमारे पास ग्रीन कलर है. एंड देन 600 के आसपास जो है वो येलो है. 650 के अराउंड जो है हमारे पास रेड है, देन ऑरेंज है, और फिर उसके बाद 700 के अराउंड जो रेड है. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीजन जिसको हम इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं. और इसी में जो हमारे पास मेन इंटरेस्ट के एरियाज हैं, आप देखेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगी तो उसमें फिर आपको ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल होंगी ये इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से कौन सा जो कलर है स्पेक्ट्रम का दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट काइंड ऑफ पिगमेंट, और कौन सा पिगमेंट कौन से कलर को या कौन से रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम को जो है वो ज़्यादा अब्सॉर्ब कर सकता है. ये विजिबल स्पेक्ट्रम को की यूटिलाइजेशन भी बताई हुई है और साथ में उनकी रेंजेस भी एक्सप्रेस की हुई हैं. जैसा कि इंफ्रारेड जो है जो कि रेंज करता है 700 टू 800 नैनोमीटर, तो ये देखा गया है कि प्लांट्स में ये हाइट को इंक्रीज करता है. और फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो इस रीजन को एक्चुअली इस रीजन की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, जो कि प्लांट में डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं. बैक्टीरियल क्लोरोफिल को अगर हम देखें वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि वो भी इंफ्रारेड रीजन के ही रेडिएशंस को जो है वो अब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस करते हैं. Then comes the red region, ranges from 610 to 700 nanometer. This is actually very active region with respect to photosynthesis. और फोटोसिंथेसिस का रेट अगर आप देखें तो वो इस रीजन में पीक पे होता है. डेफिनेटली जो आपके मेन जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही इस रीजन में लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं. और पी आर जो फाइटोक्रोम आर है या रेड है वो एक्चुअली इस रीजन की लाइट को जो है वो अब्जॉर्ब करने का हामिल है. फाइटोक्रोम जो है ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पीएफआर और पीआर ये दोनों फाइटोक्रोम्स के टाइप्स हैं और ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं. और उसके बाद आता है जी ग्रीन येलो रीजन. तो इसको अगर हम देखें तो एक्चुअली हमें प्लांट्स ग्रीन भी इसीलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये जो रीजन है ये रिफ्लेक्ट बैक होता है. बहुत सारे हमारे जो पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं या जिनका ज़्यादा रोल है फोटोसिंथेसिस में, वो इस रीजन में ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते. और दैट इज़ वाई हमारे जो जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो हमें ग्रीन कलर के नज़र आते हैं क्योंकि वो इस रीजन की लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. सो लिटिल इफेक्ट ऑन ग्रोथ. एंड देन फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन, हायर प्लांट्स की हम बात नहीं करें लेकिन अदर प्लांट्स में जो फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन जो हैं जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो इस रीजन की लाइट को अब्जॉर्ब करके और इसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. देन ब्लू का रीजन आता है. ब्लू भी रेड की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि क्लोरोफिल की अगर आप पीक्स को देखें तो वो इन दो रीजन्स में ही ज़्यादा बनती हैं. सो वेरी एक्टिव फोटोसिंथेसिस और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है प्लांट्स के अंदर
विद रिस्पेक्ट टू लाइट जो मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट उसके पार्ट्स की, वो कहा जाता है कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट। और फाइटोक्रोम एंड फ्लेवोप्रोटीन जो हैं वो इस रीजन की लाइट को अब्जॉर्ब कर सकती हैं एक्टिवली। और इसके अलावा कैरोटीनाइड्स में भी ये खूबी है कि वो भी ब्लू लाइट को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा क्रिप्टोक्रोम्स जिनका अगेन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में रोल है, वो भी ब्लू लाइट की रीजन को ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद शॉर्टर वेवलेंथ की आपके पास आ जाती हैं जिनमें है यूवी, और यूवी में हमारे पास है 200 टू 400 एंड 280 टू से लेस देन 280 वाले यूवी जो हैं। और अगर आप इनको ओवरऑल देखें तो ये अगर इनका एक्सपोजर हो ज़्यादा प्लांट पे तो ये प्लांट के साइज को शॉर्ट कर देती हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इनको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। और क्रिप्टोक्रोम्स को भी देखा गया है कि यूवी ए रीजन की जो लाइट है उसको ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको ये ज़्यादा एक्सपोजर इसका मिले जैसे कि 280 से लेकर 315 नैनोमीटर तक की जो आप कह लें कि लाइट है, अगर उसको एक्सपोजर ज़्यादा हो तो इससे सन बर्न यानी कि बर्निंग ऑफ द सरफेस जो है वो भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द लाइट। और इससे जो शॉर्टर वेवलेंथ की है दैट इज़ लेथल टू प्लांट। प्लांट इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते अगर ये वाले रीजन की लाइट उनको कॉन्टिन्यूसली दी जाए, तो वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स इनको अब्जॉर्ब कर सकती हैं। और जेमिसाइडल जो लैंप्स हैं उनमें इनका इस्तेमाल जो है वो देखा गया है, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लास्ट जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैं एक पॉइंट जो है जो कि मेरा ख्याल है कि हम सब जानते ही हैं लेकिन फिर भी मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम इसको एक्सप्लेन कर लें कि हमें प्लांट जो हैं वो ग्रीन क्यों दिखते हैं। कोई भी कलर जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ का कोई कलर है तो एक्चुअली वो कलर वो पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, या वो पोर्शन होता है लाइट का जो कि एक्चुअली वो कंपाउंड, वो सरफेस, वो मटेरियल अब्जॉर्ब नहीं कर रही होती बल्कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है। प्लांट हमें ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल जो है वो हमें ग्रीन नजर आता है, और ग्रीन उसी की ग्रीन होने की वजह से लीव्स हमें ग्रीन नजर आते हैं और ओवरऑल प्लांट जो है हमें ग्रीन नजर आता है। तो ग्रीन वो क्यों नज़र आता है, क्योंकि वो बाकी सारे जो रीजन्स हैं ग्रीन से पीछे और ग्रीन से आगे, उन रीजन्स की जो लाइट है जैसे कि रेड रीजन मैंने आपको बताया और ब्लू रीजन जो है वो मैंने आपको बताया, इन रीजन्स में ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, जबकि ये जो सेंट्रल रीजन है ग्रीन एंड येलो रीजन जो है इसमें क्लोरोफिल की अब्जॉर्प्शन नहीं है या पिगमेंट्स की अब्जॉर्प्शन इनमें नहीं है। दैट इज़ वाई अगर तो किसी प्लांट में सिर्फ क्लोरोफिल और बी ही ज़्यादा पाए जाएंगे, क्लोरोफिल की टाइप से ज़्यादा पाई जाएंगी, तो डेफिनेटली वो आपको ग्रीन कलर का ही नज़र आएगा क्योंकि वो इस रीजन की लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा। बट अगर किसी प्लांट के पास उसके पेटल्स में, उसके फ्रूट्स में, उसके किसी और सरफेस में अगर उनके पास अदर देन क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो कि ग्रीन येलो रीजन्स की लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो फिर हमें ग्रीन नज़र नहीं आएंगे। उनका कलर फिर डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट कंसंट्रेशन एंड पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह के पिगमेंट्स कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, क्या वो ज़्यादा हैं या कम हैं, और आया उनमें किस तरह के पिगमेंट जो है वो पाए जाते हैं, वो किस तरह के रीजन को जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं। इसी को ये फर्दर एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम में कि एक्चुअली ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है और बाकी कलर्स जो हैं इन सातों में से वो इस्तेमाल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई हमें प्लांट्स जो हैं वो हमारी आइज को जो है वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं क्योंकि ग्रीन कलर एक्चुअली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। लास्ट स्लाइड पे जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्यों हमें प्लांट ग्रीन नज़र आते हैं, ये उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है विद रिस्पेक्ट टू थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। एक्चुअली प्लांट्स में लीव्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही एक्चुअली पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और वो ही एक्चुअली ग्रीन कलर की लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते। दैट इज़ वाई वो ट्रांसमिटेड होती है या रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है और हमें जो है वो प्लांट्स जो है ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। Most of the material of this topic is collected from Introduction to Plant Physiology by Hopkin.
दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अच्छी से समझ आ चुकी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पोर्शन को फर्दर हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वहाँ इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी अबाउट पिगमेंट्स, जो कि इस विजिबल स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजन्स को जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं। हम एक कम्प्रीहेंसिव डिटेल जो है इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से पिगमेंट्स जो हैं किस किस पोर्शन की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। थैंक यू।